Hello everyone, good evening all. So today we'll discuss about the that homework question as I have given you in the earlier class. Okay, so वो वाला अपने को डिस्कस करना है लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था. Let's see. Okay, Sandeep, you match with my solution. Okay, so this is what the question given. This is what function of ABC, function of ABC, which is equal to summation of m is the mean term, and 0 1 6 and 7 plus it is summation of d means don't care, it is 3 4 and 5. Okay, so it is 3 4 and 5. Firstly we'll draw the k map. So here total variables are 3 means 2 power 3 8 cells will be there. So 1, it is 2 plus 2 4 plus 2 6 and 8. Here it is A, here it is B and C. Let me write down 0 0 0 1 1 0 1 1. Here it is 0 and 1. Okay, so this is what the k map, and here I can put the values also. So let me put the values here at place 0 0 is this place, here it is 1 at 1, here it is 1 at this place, then 6. So we can say this one is 0 1 3 2 4 5 7 7 and 6. So 6 will be here and 7 will be here. ठीक है, ये हो गया. Plus we'll write down the don't care at 3. So where is 3? 3 means this place. Okay, it is 3 and 2, so 3 is this place, and another don't care, that is 4. 4 means this place. Zero zero, just a minute. 0 0 0 1 1 1. Yeah, right, you are right. हाँ, मैंने गलती से लिख दिया है ये. यस, ये क्या होगा? इट इज 1 1. जस्ट a minute. Here it is 1 1, then 1 0. Now it is okay. 4 4 I have write down the value and don't care. And another thing, 5 कहाँ पे आएगा? That is 1 0 1. Here it is 5. Okay, so this is what the story. Now we need to make the pairs. ठीक है, तो pairs यहाँ पे बनाने पड़ेंगे. So what can be the pair? So one thing, this can be the pair. दो केस बन सकते हैं यहाँ पे भी. पहले ये वाला ही देख लेते हैं. एक पेयर ये बन जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा. ठीक है, और पेयरिंग कहाँ पे हो सकती है? दैट कैन बी दिस वन, ये 2 वाली. ठीक है, ये पेयरिंग हो सकती है. उस डोंट केयर को क्या कर दिया? छोड़ दिया है. डजेंट मैटर, राइट. सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस पेयर फर्स्टली. Okay, if we simplify this one, we'll check row wise. Anything common? No, nothing common. So we'll check for the column wise. Anything common? Yes, here it is 0, here it is 0. So 0 common means b common है, और b के corresponding 0 है, इसका मतलब b complement.
So here it is B complement. Next one is this one. We can simplify next, that is this pair. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो वाइज इट इज A, column wise anything common, yes, this one and this one, so we can say here this B is common और 1 है तो 1 के corresponding simply B आ जाएगा, right? So finally this is what the expression. ओके तो ये क्या रहेगा, फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा. राइट दूसरा केस क्या हो सकता था इसी को सॉल्व करने के लिए, अनदर केस में भी दिस वन, here it is ABC 0 0 0 1 1 1 and 1 0, here it is 0 and 1, here it is 1 1 1 1, this 1 1 and 1. तो एक पेयर क्या बन जाएगा, ये वाला बन सकता था, है ना, 4 का बन गया और प्लस में ये क्या बन गया, 2 का बन गया. इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, राइट और इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर देंगे, इसकी एक्सप्रेशन बना देंगे. सो देयर कैन बी मोर देन वन रिजल्ट पॉसिबल, है ना. तो ये तो हमें पता ही है कि के मैप के केस में एक से ज़्यादा रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं. यस, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर. Yes, what about others? Clear. Okay, fine. Let's see the next one. So okay, किसका अनम्यूट हो रखा है, लेट मी चेक. Okay, so next is we'll see the four variable K map with four variables. So we'll see the K map with four variables. Here it is function with A, B, C and D, four variable. This is what a function with four variables A, B, C, D, which is equal to sigma of M, and here it is given 0 1 3 0 1 3 5 7 8 5 7 8 5 7 8 9 11 13 9 11 13 and 15. Okay, this is what the question given, and now we'll draw the K map corresponding this one. Let's see. So how many cells will be there? Can you tell me? How many cells will be there? If it is 4 variables, yes. So if it is 4 variables, 2 power 4 means 16 cells will be there, right? So 2 power 16 cells will be there. 1 2 3 4 1 2 3 4, right? Here it is A, B, here it is C and D. Here we can say 0 0 0 1 1 1 and 1 0.
here it is 0 0 0 1 1 1 and 1 0, right? These are the values. Now how to represent the cell? Here we can say A, B, C and D. Okay, so how to represent? So firstly I will take this 0 0 0 0 for A and B and 0 0 for C and D. 0 0, so this is what a 0, so we can say the value for this cell is 0. Now next one I will take this one as a 0 and this is 0 1, so 0 0 0 1 0 1 means it is 1, so this cell is representing 1. And next one 0 0 and 1 1, 0 0 1 1, so we can say this is 3, so this cell is representing 3. What about next one 0 0 and 1 0, 0 0 1 0, we can say it is 2, so this cell is representing 2. What about next one? Next one is 0 1, 0 1, here I can say it is a 1 2 4 and 8. Okay, so 0 1 0 1 then 0 0 0 1 0 0, right? This 0 0 1 0 0, so what we can say, this is what 4, so this cell is representing 4. What about next one 0 1 and 0 1, 0 1 then again 0 1, so this one is 4 and this one is 1 5, so this is what 5. What about next one? Next one is 0 1 and 1 1, 0 1 1 1, so what is this one 7, so this is what 7. And 0 1 and 1 0, 0 1 1 0, what is the value for this one? We can say it is a 4 plus 2 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 6. नेक्स्ट वन दिस इज व्हाट 1 1 एंड 0 0, 1 1 0 0, सो 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 8 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 इज 7 तक हो गया ना. नेक्स्ट वन इज अच्छा पहले इस वाली सेल को देख लेंगे. वैसे ये रिप्रेजेंट किसको करेगी 12 को रिप्रेजेंट करेगी. इससे पहले ये वाला केस देख लेते हैं, दैट इज 1 0 1 0 एंड 0 0, 1 0 0 का मतलब क्या हो गया, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 8, ठीक है, तो 8 यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट 1 0 एंड 0 1, 1 0 0 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इट इज़ 9, तो 9 यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट वन क्या होगा, दैट इज 1 0 एंड 1 1, 1 0 1 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 8 प्लस 4 8 प्लस 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 3 इज 11, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11. ये क्या था 9 था, ये क्या था 9 था, ये 11 हो जाएगा. यस, दिस वन इज 11. नेक्स्ट वन 1 0 1 0, 1 0 1 0 इज 10, तो ये सेल किसको 10 को रिप्रेजेंट करेगी, राइट. और फिर नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन वी कैन से दिस वन 1 1 एंड 0 0, 1 1 0 0, 1 1 0 0 का मतलब क्या हो गया 8 प्लस 4 12, सो ये वाली सेल क्या हो जाएगी 12. और नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वन इज इट इज A B C एंड D. हाँ 1 1 देन 0 1, 1 1 0 1, सो इट इज़ 1 2 4 8, सो ये क्या हो गया 12 12 प्लस 1 13, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी दैट इज़ 13. नेक्स्ट 1 1 1 1 ऑल 1 मीन्स 15, सो ये क्या है 15. और नेक्स्ट क्या हो जाएगी दैट इज़ 1 1 एंड 1 0, 1 1 1 0, दैट इज what 4 plus this 6, it is 14 I think. yes, 8 plus 4 12 plus 1 14, ये क्या होगी 14. सो ये पता चल गया. तो ये पैटर्न रहेगा किसका, सेल्स को रिप्रेजेंट करने का. सो ये क्या है
zero number cell, this is what zero number cell, this is what cell number 1, this is what cell number 3, then cell number 2, it is 4, this one is 5, this one is 7, this one is 6, this one is 12, this one is 13, this one is 15, this one is 14, next it is 8. तो यहाँ पे 12 वाली रो आ रही है और यहाँ पे 8 वाली आ रही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, 8 9 11 और ये क्या होगा 10, तो इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो ऐसे, और अदरवाइज क्या होगा आप ऐसे कॉम्बिनेशन से देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी. ओके, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? क्लियर, ओके. सो let me rub this one. Yes, let me redraw the key map and we'll put the values. One, two, three, four. 1 2 3 4. Here it is A, B, here it is C and D. This one is 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, right? Now we can say values. So what can be the values? At 0 we'll put 1, ठीक है, 0 पे 1 आ गया. नेक्स्ट विल पुट 1 ऑन 1, 1 यहाँ पे है ना, तो नेक्स्ट सेल में 1 आएगा. नेक्स्ट 3, 3 कहाँ पे है, ये वाली सेल है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा. नेक्स्ट 5, 5 कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली सेल में 5 होगा. और नेक्स्ट 7, 7 कहाँ पे है, 1 2 3, थर्ड सेल में 1 2 3 थर्ड, यहाँ पे 5 आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है 8, 8 कहाँ पे आ जाएगा, 8 मीन्स हियर. 9, 9 का मतलब उससे अगला. और फिर क्या होगा 11, 11 कहाँ पे आएगा, 11 उससे अगला, यहाँ पे 1 आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा 13, 13 का मतलब कहाँ पे, ये 1 एंड 2, तो यहाँ से ये 13 हो गया. नेक्स्ट 15, 15 उससे नेक्स्ट हो गया. दिस इज व्हाट द all the values. So we have put all the values corresponding the mean terms. Now we'll make the pairs. So firstly we'll start from the largest pair, that can be the octets. ठीक है, तो largest pair क्या हो सकता है, that can be the octet. तो octets का pair ये वाला बन जाएगा. ठीक है, तो इनकी पेयरिंग कर दी. और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट वी कैन मेक, हाँ, तो फिर हमें क्या करना है, 4 की पेयरिंग अगर पॉसिबल है तो 4 वाली ट्राई करनी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 की पेयरिंग हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्या बन गई, 4 वाली पेयरिंग, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. ठीक है, तो फाइनली क्या कर लिया, सबको कवर कर लिया है. और अब क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अभी एक्सप्रेशन देखते हैं. पहले क्या कर लेते हैं, 8 वाले को सॉल्व कर लेते हैं. 8 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक्सप्रेशन बनेगी, तो 8 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग रो वाइज कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. देन व्हाट इज द कॉलम वाइज, कॉलम वाइज देख लेते हैं.
कॉलम वाइज क्या कॉमन आएगा, लेट्स सी। सो कॉलम वाइज अगर देखें तो ये वन हो गया और ये भी वन हो गया, इसका मतलब इस वन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी, और वन है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करना है, तो फाइनली यहाँ से इसका क्या आ गया रिजल्ट, डी। और इस पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आ जाएगा, इस पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, वो चेक कर लेते हैं। यस, ये वाला पोर्शन कॉमन है। इस वाले पोर्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जीरो का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इट मीन्स इट इज़ बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब क्या करना है, कॉलम वाइज चेक करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस, इसमें वन जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, और जीरो को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, और जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फाइनली वी कैन से इट इज डी प्लस b complement c complement. This is what the finally minimized expression. So is it clear to all, yes, is it clear to all, yes, what about other candidates, oh Ritu ma'am, after long time, okay. So finally this is what the minimized expression. Now we'll take the one more example for the four variables, after that we'll finish for four variable. Yeah, let's see next one. So you try to solve this one firstly. If it is f of a, b, c and d, okay, this is what a function with a b c d, and here it is a sigma of m 0 to 8, 0 to 8, 10, 0 to 8, 10, 14, plus it is sigma of d means don't care, so it is 5 and 15, 5 and 15. Okay, so this is what the question given, and we'll try to simplify this one. Okay, so firstly you try to simplify this one. Till this time I will draw the key map. ठीक है, खुद से भी ट्राई कर लो, मैं भी key map ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे. Yeah, that may be right.
Yeah, maybe. Okay, let me simplify this one. So already I have written these values for these values, that mean terms we have written, right? So values for mean term we have written here, and don't care also we have put. So now we'll try to make the pairs. So firstly we'll look for the pair of 8. So pair of 8 is not possible. What about pair of 4? Yes, pair of 4 is possible. So we can make the pair like this one, this one, this one and this one, ठीक है, और ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या कर लिया हमने, पेयर बना दिया है 4 वाला। नेक्स्ट एक पेयर और बन जाएगा, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो एक पेयर ये बन जाएगा, डोंट केयर इनका कोई पेयर नहीं बन रहा है, डजेंट मैटर, बन जाए तो सही है, अदरवाइज डजेंट मैटर। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 वाला पेयर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 वाले पेयर के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे रो वाइज, रो वाइज क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें और इसमें, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस, दिस जीरो एंड दिस जीरो। जीरो को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, फर्दर विल लुक अबाउट द कॉलम वाइज। कॉलम वाइज ये वाला कॉमन क्या आ रहा है, जीरो, here also 0, so we can say 0 is representing this d and d complement, so here d complement। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, बी डी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या करना है, इस पेयर को सॉल्व कर लेते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, दैट इज रो वाइज देखें तो ये वाला और ये वाला कॉमन है क्या कुछ, यस, कॉमन इज दिस वन। वन कॉमन है, वन किसको कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट, और वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। प्लस में क्या हो गया, कॉलम वाइज देखेंगे तो क्या आएगा, दिस वन, वन एंड सी, वन एंड जीरो, वन एंड जीरो का मतलब सी एज इट इज डी कॉम्प्लीमेंट, सो सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट। Okay, so finally we can say that it is b complement d complement plus a c and d complement. This is what the finally result, ठीक है। तो finally this is what the result, you can match with your answer। कौन सा सिंगल वन था, उसको डोंट केयर के साथ किया जा सकता था, या दैट में बी पॉसिबल केस, बट उससे बेटर आपको ऑप्शन मिल रहा है वन के साथ कर दो। हम्म, कर सकते थे ऐसा भी, मे बी ऐसा भी रिजल्ट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता था, यू कैन मेक विद। हाँ, प्रायोरिटी पहले वन को दे देंगे। डोंट केयर ये है कि आपका बड़ा पेयर बनाने में हेल्प करेगा। सो इज इट क्लियर टू ऑल, क्लियर, ओके।